السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، ہم سبھی اس وقت رمضان المبارک کے آخری دنوں سے گزر رہے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور سے ایک سوال بار بار لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے، یہ صدقہ کب واجب ہوتا ہے، کس کے اوپر واجب ہے، کس کو دیا جائے، اس کی مقدار کیا ہے۔ اس لیے بہتر سمجھا گیا کہ ایک مختصر سا ویڈیو اس کے تعلق سے بنا دیا جائے تاکہ عام لوگ آسانی سے اس عبادت کے بارے میں جان سکیں۔ آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ فرض عین یعنی ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اسی طریقے سے تعبیر آئی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو حدیث سنن ابی داؤد ابن ماجہ کی ہے، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیحین کی، وہ بھی ایسی ہی تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ کس کے اوپر یہ صدقہ فطر فرض ہے؟ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر کو علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ غلام پر، آزاد پر، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر ایک کے اوپر یہ عبادت فرض ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستحب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو تو اس حمل کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، البتہ واجب نہیں ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے آخری دن رمضان کے سورج غروب ہونے کے بعد، جب عید کا چاند نظر آ جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان، کہ رمضان سے فطر کے وقت، رمضان سے افطار کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے، سورج غروب ہونے کے بعد یہ عبادت فرض ہو جاتی ہے۔ کب تک اس کا وقت ہے؟ جب تک کہ آدمی اپنی عید کی نماز نہ پڑھ لے۔ اس صدقہ فطر کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر فرض ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اس کا مقصد کیا ہے اس صدقہ فطر کا؟ تاکہ روزے دار کو اس کے لغو اور رفث سے، لغو کہتے ہیں لایانی کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، رفث کہتے ہیں کہ ہر وہ کلام ہے جو فحش سے تعلق رکھتا ہو، جس کو بیان کرنے میں آدمی کو شرم محسوس ہوتا ہو۔ روزے کی حالت میں بسا اوقات ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں روزے دار سے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، یا اپنی زبان کی، یا اپنے خیالات کی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ایک روزے دار مکمل طور سے پاک صاف ہو جائے۔ اور دوسری علت بیان کی گئی ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ تو یہ دو اہم سبب ہے اس صدقۃ الفطر کے فرضیت کے تعلق سے۔ اگر کوئی شخص اس صدقۃ الفطر کو عید کے نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو احادیث کے اندر ہے کہ وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عام صدقہ ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے اس صدقے کو ادا کیا، اس کا یہ صدقہ، اس کی یہ زکوٰۃ تو مقبول ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس شخص نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے 1 صاع، جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر ہے
सुनन की और सहीहैन की हदीस में एक सा एक पैमाना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और उसके बाद के अदवार में भी इस्तेमाल किया जाता था। हमारे अपने मुल्कों के अंदर भी इस तरह के पैमाने होते थे आसानी से नाप तोल के लिए, लेकिन जब से किलोग्राम या इस तरह के दूसरे वज़न आ गए तब से इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सा आज भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको आसानी से ये पैमाना मिल जाएगा। किस तरीके से, किस अंदाज का था। एक सा कहते हैं कि 4 मुद के बराबर होता है। 4 मुद यानी आप अपनी दोनों हथेलियों में गल्ला लेकर के 4 बार आप रखें, इसको एक सा कहा जाता है, जिसको उलमा ने कहा कि जिसकी मिक़दार तकरीबन 3 किलो के आसपास बनती है। फतावा लजना दायमा जो यहाँ की बहुत ही मारूफ सऊदीया की मशहूर फतावे की कमेटी है, उनका कहना है कि 3 किलो के आसपास इसकी मिक़दार है। अलबत्ता बाज़ उलमा को आप देखेंगे कि 2 किलो से लेकर के 2 किलो 40 ग्राम, 2.5 किलो, 2.25 किलो, 2.25 किलो का जिक्र मिलता है। तो असल में जो पैमाना होता है उसमें आप जो चीज़ रखेंगे, जिस तरीके से उसका वज़न होगा, ऐसे ही वो किलोग्राम में उसका मिक़दार हमें समझ में आता है। तो ये आदमी को चाहिए कि वो कम से कम 3 किलो अगर निकाल दे तो बेहतर है। हर तरह के शुकूक और शुबहात से पाक हो जाए और यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसने ये सदका अदा कर दिया है। साल में एक बार है और फ़र्ज़ है। ज़ाहिर सी बात है इसमें कोताही हमें किसी भी अंदाज़ में करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस ज़कातुल फ़ित्र को किस शक्ल में निकाला जाए, जितनी भी अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती हैं इस सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से, उसमें ताआम का ज़िक्र मिलता है। ताआम कहते हैं कि वो चीज़ जो खाई पी जाए, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है कि तुअमतल लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों के लिए खाना है। मिस्कीन यानी मुआशरे के तब सबसे बदहाल किस्म के लोग जिनके पास खाने पीने की चीज़ें भी मैसर ना हो। ऐसे ही हदीस है सही बुखारी की, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कुन्ना नुखरिजु फ़ी अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फ़ित्र, फ़ित्र के दिन, ईदुल फ़ित्र के दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकालते थे साअम मिन ताआम, एक सा खाने पीने की चीज़ से। फिर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कान ताआमुना अश्शईर वज़्ज़बीब वल-अख्त वत्तमर, हमारा खाना उस वक्त जौ, किशमिश, पनीर और खजूर के शक्ल में थे। जिस तरीके से खाने के अंदाज़ लोगों के बदलते गए, ऐसे ही सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी भी अलग अलग खाने पीने की चीज़ों से की जाती रही। आज के दौर में अगर देखा जाए तो आम तौर से सबसे मरगूब, सबसे महबूब ग़िज़ा जो है, जो आदमी की सबसे सख्त ज़रूरत है खाने पीने की चीज़ों में, वो चावल है या आटा है। आदमी अपने मुल्क के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसी से सदक़तुल फ़ित्र निकालने की कोशिश करें। अहादीस में यही बयान किया गया है और यही मकसद भी है। ये सदक़तुल फ़ित्र ये बदन का सदका है, ना कि माल का सदका है। बदन के ताल्लुक़ से जो सदक़ात हैं, चाहे वो कफ़ारात हों या इसी तरीके से नज़र आदमी कोई मानता है या क़ुरबानी की जो ज़बह करने की जो सुन्नत है, ये सब बदन की इबादत है और इसीलिए इसके अंदर माल को अदा करना बेहतर नहीं है, क्योंकि कफ़ारात में मतलूब जो होता है, बेशुमार कफ़ारात आप देखेंगे इस्लाम में हैं कि उसमें मिस्कीनों को खाना खिलाने का हुक्म दिया गया है। इतने मिस्कीनों को, कहीं पे 60 मिस्कीन, कहीं पे 10 मिस्कीन। और इस तरह की इबादत जो हदीस के अंदर भी तुअमतल लिल मसाकीन, उससे भी समझ में आता है कि मिस्कीनों का खाना है। इसके वक्त को भी अगर हम देखेंगे जो इतना महदूद वक्त है, उससे भी यही समझ में आता है कि असलन ये उन मिस्कीनों और फ़कीरों का हक़ है जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी मैसर ना हो या आज खाएँ कल के बारे में पता ना हो। और ऐसे मसाकीन मिल जाएंगे अगर हम ढूंढने की कोशिश करें। सहाबे कराम का भी इसी पर अमल रहा है, बल्कि सहाबे कराम में से किसी भी सहाबी के ताल्लुक़ से कोई सबूत नहीं मिलता है कि उसने ज़कातुल फ़ित्र को नक़द की शक्ल में अदा किया हो। या इसी तरीके से हर दौर में जमहूर उलमा जो हैं, चाहे वो मालिकिया हों या शाफ़िइया हों या इसी तरीके से हनाबला, या इस दौर के अंदर अगर कह लें शेख इब्न बाज़, शेख इब्न उथैमीन, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात के कायल है कि सदक़तुल फ़ित्र को ताआम से ही अदा करना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों से ही। बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से जो सवाल किया गया
कि क्या हम सदक़ा फ़ित्र नक़द की शक्ल में दे सकते हैं, तो कहते हैं कि मुझे खौफ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये इबादत है अदा ही ना हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कबूल ना करें। लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक उसी में से अहनाफ भी हैं, इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है इस बाब में कि नक़दन सदक़तुल फ़ित्र को निकाला जा सकता है। और हर दौर में कुछ उलमा इस जानिब गए हैं कि नक़दन निकालना दुरुस्त है, लिहाजा अगर कोई शख्स गले की शक्ल में सदक़तुल फ़ित्र को अदा करता है तो यही बेहतर है, सुन्नत के ऐन मुताबिक है, एक इबादत है और इबादत की अदायगी की सिफत भी हदीस के अंदर मौजूद है, लिहाजा हमें वैसे ही ये इबादत अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स नक़दन निकाल देता है तो कोई हर्ज नहीं है उन उलमा के अक़वाल के मुताबिक जिन्होंने इसको जायज़ करार दिया है। आखिरी सवाल है इस सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से कि अगर कोई शख्स ईद उल फ़ित्र से पहले ये सदका ना निकाल सके तो क्या ईद के बाद वो इसे अदा कर सकता है? अगर कोई शख्स किसी उज़्र शरई के बिना पर, मिसाल के तौर पर वो बीमार था या सफ़र की हालत में था जिसकी वजह से वो अदा नहीं कर सका, यानी उज़्र उसके अदायगी में हायल है, ऐसे शख्स के लिए उसकी क़ज़ा सुन्नत है, जैसा कि तमाम फ़राइज़ के बारे में है। अगर कोई शख्स अदा न कर सके वक्त में तो बाद में उसको क़ज़ा कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स गफलत की वजह से जानबूझ करके क़स्दन ईद की नमाज़ से पहले अदा नहीं करता तो उसे तौबा की ज़रूरत है। और किसी भी इबादत में जो शख्स क़स्दन जानबूझ करके छोड़ता है, कोई भी इबादत जो फ़र्ज़ इबादत हैं, तो उसमें उसके लिए तौबा ही है, ना कि उसके लिए उसकी क़ज़ा है, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो। तो ऐसे शख्स के लिए क़ज़ा नहीं है जो क़स्दन इसे छोड़ता है, उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि फ़र्ज़ इबादत में उसने कोताही किया है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस छोटी सी इबादत को जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, रमज़ान ख़त्म होने के बाद उसे निकालने की, ईद की चाँद नज़र आने के बाद कोशिश करें। अलबत्ता बाज़ उलमा ने 1-2 दिन पहले भी इसे निकालने को जायज़ करार दिया है। सहाबे कराम से इसका सबूत मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम 1 दिन या 2 दिन पहले भी इसको निकाल लिया करते थे। लेकिन ये कि शुरू रमज़ान से ही इसको निकाल देना, और या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मर्ज़ी हो तब निकाल दें, इस तरीके से करना दुरुस्त नहीं इस इबादत के ताल्लुक़ से, क्योंकि इस इबादत का वक्त है, इसकी कैफ़ियत है, इसका मिक़दार है, इसके मुस्तहिक़ीन हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी तमाम इबादत को इस्लाम की रोशनी में अदा करें, किताब व सुन्नत की रोशनी में उसको अदा करने की कोशिश करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस इबादत को अंजाम देने की तौफ़ीक दे, अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमा दे। रोज़े की हालत में जो लग़्व या इस तरह की जो काम सरज़द हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से माफ़ फ़रमा दे और मिस्कीनों के लिए खाने पीने का ज़रिया बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।